کشش ہے بہت ہی وہاں کا سما، بھول جاؤ گے اپنا یقین المکان، بھول جاؤ گے اپنا یقین المکان، سبز گنبد پہ جس، سبز گنبد پہ جس دم پڑے گی نظر، چلیے طیبہ نہ گئے، چلیے طیبہ نہ گئے، چلیے طیبہ نہ گئے، چلیے طیبہ نہ گئے۔ آگے مرتبت عزت مآب حضرت مولانا عتیق الرحمن صاحب قاسمی کے روبرو پہنچتا ہوں اور التماس کرتا ہوں کہ چند منٹ اجمالی تعارف اپنی بستی کا اور اپنے مدرسے کا پیش فرمائیں کہ خود کے سامان کی باتیں کریں، سنت و قرآن کی باتیں کریں، خود کے سامان کی باتیں کریں، سنت و قرآن کی باتیں کریں، تین پتھر جس نے باندھے پیٹ پر، ہم اسی سلطان کی باتیں کریں۔ مائک پر حضرت مولانا عتیق الرحمن صاحب قاسمی۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم بزرگوں، علماء کرام، عمائدین قوم و ملت، رہبران قوم، علماء کرام، حفاظ اعظام، قرائے کرام، آج ہم اور آپ جس پروگرام میں تشریف فرما ہے، جس کا عنوان عظمت قرآن اور استقبال رمضان ہے، جو باہتمام مدرسہ اسلامیہ عربیہ کنز العلوم کے ذریعے یہ محفل سجائی گئی ہے۔ سب سے پہلے تو میں اپنے اسٹیج پر تشریف فرما تمام ہی علماء کرام، خصوصاً قائد قوم و ملت، ترجمان دین و باشعور و باصلاحیت فاضل نوجوان حضرت مولانا محمد سفیان صاحب نظامی دامت برکاتہم کا، اور اسی کے ساتھ حضرت مولانا محمد شبلی صاحب بہریچی دامت برکاتہم کے ساتھ ساتھ اسٹیج پر تشریف فرما حضرت مولانا ابو الخیر صاحب ندوی دامت برکاتہم، اسی طرح ڈاکٹر محمد صغیر صاحب اور حافظ مولانا اشفاق ندوی صاحب کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر محمد شمیم صاحب، قاری پرویز یزدانی صاحب کے ساتھ اس اسٹیج پر جتنے بھی علماء کرام تشریف فرما ہیں، سب کے نام لینا اور سب کو باضابطہ اعلان کرنا یہ مشکل گھڑی ہوگی، وقت ضائع ہوگا، اور میں نہیں چاہتا کہ اس خوبصورت محفل میں بیچ میں آ کر آپ حضرات کی شمع خراسی کروں۔ اسی طرح ہمارے درمیان ایک اور نوجوان قائد حضرت مولانا محمد حشمت صاحب قاسمی دامت برکاتہم، جن کی حمایت میں آج کی یہ محفل سجی ہے، ان سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ اگر پان کا لطف لے چکے ہوں تو اسٹیج پر تشریف لے آئیں، اور آپ کا بھی آج کی اس نورانی محفل میں بھرپور استقبال ہے۔ آپ حضرات کی آمد اور آج کی یہ محفل سرزمین کرسا میں ہے، اور یہ کرسا وہ گاؤں ہے جو صدیوں سے نہیں کئی صدیوں پرانا ہے، اور یہ کئی صدیوں سے اس گاؤں میں ہم مسلمان بھائی اور ہندو بھائی مل کر رہتے ہیں۔ میں بہت زیادہ عمر کا نہیں ہوں، لیکن تقریباً 40 سے 45 سال کی میری عمر ہے، اور مجھے جہاں تک یاد پڑ رہا ہے 1983 یا 84 میں جب ہندوستان نہیں پورے اتر پردیش میں خصوصاً اور پورے ہندوستان میں عموماً ایک بہت بڑا سیلاب آیا تھا، اللہ رب العزت کی طرف سے ایک عذاب کی طرح سیلاب تھا جو تمام خد و خال کو پر کرتا ہوا پورے اتر پردیش کو محیط کر گیا تھا۔ اس سیلاب کی رات تھی، اس علاقے کے چاروں طرف پانی بھرا ہوا تھا۔ یہ میدان جس میں آج چوہدی ہے، روشنی ہے، اور علماء کرام کی نورانی محفل میں آپ حضرات منور ہیں، یہ پورا میدان پڑا تھا، خلیان ہوا کرتا تھا، بچوں کے کھیلنے کی جگہ ہوا کرتی تھی، اور یہاں پر پیچھے بہت چھوٹا سا ایک کمرہ بہت بوسیدہ حالت میں، جو مجھے اس گاؤں کے بزرگوں نے جو مجھ سے عمر میں بڑے تھے ان حضرات سے معلوم کرنے کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ ایک کمرہ
1974 या 76 के दरमियान में गांव के कुछ बाशऊर लोगों की कोशिश और इस गांव के जो सबसे पहले मुअल्लिम, इस मदरसे के सबसे पहले मुदर्रिस, और कब से इस गांव की इस सरजमीन पर अल्लाह रब्बुल इज्जत का एक फजल 1962 में हुआ कि इस सरजमीन पर हजरत मौलाना कुतुबुद्दीन साहब निहाली रहमतुल्लाह अलैह की मईयत में और उनकी मोहब्बत में बाराबंकी जिले के एक अजीम और बड़ी शख्सियत हजरत मौलाना जलाली साहब रहमतुल्लाह अलैह इस गांव में हजरत मौलाना कुतुबुद्दीन साहब निहाली रहमतुल्लाह अलैह के साथ तशरीफ लाए। लाने के बाद जब उन्होंने गांव का माहौल देखा, गांव की गुर्बत देखी, मुसलमानों का माहौल देखा कि दो मसाजिद हैं, उस जमाने में दो मसाजिद थी, एक गांव की जामे मस्जिद थी और एक इस महल्ले मतवा की मस्जिद थी। इन दो मसाजिद हैं और अजीम गांव, बड़ा गांव है, एक कसीर आबादी मुसलमानों की है। इस गांव के अलावा गांव में चंद बुजुर्ग हैं जो सिर्फ जनाजे की नमाज, जुमा की नमाज और घरों में फातिहा देने की सलाहियत रखते हैं, जिसमें मरहूम अब्दुल हक साहब जो यहाँ स्टेज पर मौजूद मौलाना ज़ियाउद्दीन साहब नदवी के दादा हुआ करते थे, और मौलवी मास्टर जमीलुर रहमान साहब जो मौलवी बाज़ाब्ता नहीं थे लेकिन दावत के काम से लगकर मौलवी जमीलुर रहमान बन गए, वरना वो गवर्नमेंट कॉलेज में मास्टर थे। इसी तरह हमारे उस्ताद जिनसे हमने नाजरा पढ़ा है मौलवी मोहम्मद साजिद साहब दावत रहमतुल्लाह अलैह, इस गाँव के वो सरचश्मा है, वो दरिया है जिस दरिया से हमने भी एक आध कतरा लिया है। और गांव के जितने भी हमसे ज्यादा उम्र वाले बुजुर्ग हैं, अगर किसी ने कुरान या नादरा पढ़ा है, अलिफ या बा पढ़ा है, एक या दो सूरतें याद की है, तो उन सब के पीछे कहीं न कहीं मौलवी मोहम्मद साजिद खान साहब मरहूम रहमतुल्लाह अलैह का हाथ था। मुझे मेरे बुजुर्गों ने 84 के बीच में जब मैं बाशऊर हुआ, होशमंद हुआ, मैंने दरियाफ्त किया गांव के बुजुर्गों से, उन लोगों ने बताया कि 1962 का साल था। हजरत मौलाना कुतुबुद्दीन साहब निहाली रहमतुल्लाह अलैह की मौजूदगी में मौलाना जलालुद्दीन साहब का प्रोग्राम इस गांव में हुआ। जलालुद्दीन साहब बाराबंकी के एक अदीम शख्सियत थी जो हजरत मौलाना बिलाली साहब रहमतुल्लाह अलैह अलियाबादी अलैह रहमा के शागिर्द हैं और मौलाना कुतुबुद्दीन निहाली साहब मौलाना जलाली साहब के शागिर्द हैं। मौलाना बिलाली साहब रहमतुल्लाह अलैह का फैज मौलाना जलाली साहब तक पहुंचता है और उनका फैज हजरत मौलाना कुतुबुद्दीन साहब निहाली तक पहुंचता है, और फिर उस फैज की किरणें 1962 में करसा में नमूदार होती है, और उन किरणों से जब रोशनी फैलने के लिए हजरत मौलाना जलाली साहब, हजरत मौलाना बिलाली साहब की इशारे पर हजरत मौलाना जलाली साहब और मौलाना कुतुबुद्दीन साहब निहाली ने इस गांव में अपना छोटा सा मुख्तसर सा, उस जमाने में बेसरो सामानी के आलम में जिस तरह भी प्रोग्राम हुआ होगा हम और आप तसव्वुर नहीं कर सकते। ना इस तरह के टेंट थे, न लाइट थी, न मैके थी, न इस तरह बाज़ाब्ता उलमाए किराम के पास दूर दराज से सफर करने के वसाइल थे। जिस तरह भी बेसरो सामानी में वो प्रोग्राम हुआ होगा, उस प्रोग्राम में हजरत मौलाना जलाली साहब रहमतुल्लाह अलैह ने हमारे इस सरजमीन के गयूर लोगों से अपील की, गुजारिश की और दरखास्त किया कि इतना बड़ा गांव है, आबादी है, हमारी नस्लें दर नस्लें इस गांव में पलती और बढ़ती चली जा रही हैं, लेकिन तालीम का कोई मेयार नहीं है, तालीम का कोई निजाम नहीं है, ना दीनी और ना असरी किसी तालीम का कोई वजूद नहीं है। इस तरह आप हजरात को चाहिए कि आप इस गांव में कम से कम एक मकतब कायम कीजिए, और मकतब के कयाम के बाद जिस तरह की सहूलियात बकौल मौलाना कुतुबुद्दीन साहब निहाली रहमतुल्लाह अलैह के 10 बार उन्होंने मुझसे कहा कि मौलाना जलाली साहब ने मुझसे जब मेरी मुलाकात कभी किसी प्रोग्राम में होती मुझसे कहते कि कुतुबुद्दीन करसे का तुम्हारा मकतब चल रहा है या नहीं, तो कुतुबुद्दीन कहते थे, मैं शर्मिंदा होता कि हजरत मैं तो खुद बहरेज मुंतकिल गया हूँ, मैंने करसा छोड़ दिया है और करसे के मदरसे को भी मैंने बेयारो मददगार छोड़ दिया है। लेकिन अल्लाह पाक हजरत मौलवी मोहम्मद साजिद साहब मरहूम की कब्र को नूर से भरे, उनके कब्र को मुनव्वर करे। 1962 से लेकर 1986 या 87 में, शायद मैं गलत हूँ, गांव के बुजुर्ग जानते होंगे, मैं छोटा था जब मौलवी साजिद साहब का इंतकाल हुआ। इस पूरे कुर्ब जबार का
हम जैसे कमतर लोगों की आंखों ने इतना बड़ा मजमा कभी नहीं देखा था। पूरे कुर्ब जवार की आवाम मौलवी साजिद साहब से मोहब्बत रखने वाली आवाम उनके जनाजे में शरीक थी। गांव से लेकर कब्रिस्तान तकरीबन 600-700 मीटर की दूरी पर है। उनके घर जहां पर आज जामे मस्जिद बनी है उसके करीब में घर था। वहां से लेकर कब्रिस्तान तक सिर्फ अवामुन नास का मजमा था और मौलवी साजिद साहब से मोहब्बत करने वालों का मजमा था। उनका आलम यह था। इस गांव में बहुत से बुजुर्ग मौजूद हैं, अभी मौजूद है, जो इस बात को सबूत देंगे, मेरी इस बात की तायद करेंगे कि मौलवी साजिद साहब की 1962 से लेकर 86 या 87 या 84 में जब उनका इंतकाल हुआ, शायद किसी को याद हो, उन अपनी जिंदगी, पूरी जिंदगी मौलाना सुफियान साहब इस गांव से कोई तनख्वाह का निजाम नहीं था। मौलवी साजिद साहब ने पूरे गांव में किसी से कभी तनख्वाह के नाम पर मुतालबा नहीं किया। सिर्फ उनका एक मियार होता था, अगर किसी दिन दाल कम है तो किसी के घर से दाल मांग लेते थे, चावल किसी दूसरे के घर से मांगते थे, कंडी जलाने के लिए किसी और के घर से मांगते थे, लकड़ी किसी और के घर से मांगते थे। तनख्वाह का कोई निजाम नहीं था। गांव वाले भी बेसरो सामान थे। उन हालात में गांव के अंदर गुर्बत भी ज्यादा थी और लोगों में शायद शऊर भी नहीं था। वरना गुर्बत के बावजूद, जब आज हम गुर्बत के बावजूद इतना खर्च कर सकते हैं, तो उस जमाने में गुर्बत के बावजूद जो उस मियार की, उस दौर के हिसाब से तनख्वाह थी, आप दे सकते थे, हमारे बुजुर्ग दे सकते थे, लेकिन हमारे बुजुर्गों में वो शऊर नहीं था, एहसास नहीं था। लेकिन अल्लाह गरी की रहमत करे मौलवी साजिद साहब मरहूम को कि उन्होंने गांव की बेतवज्जुही, गांव की बेरगबती, गांव के लोगों की बेइतनाई के बावजूद मदरसे को जारी रखा, मदरसे की तालीम को बाकी रखा, मदरसे के वजूद को बाकी रखा। 84 के बाद जब 84 के सैलाब में मेरी नजरों के सामने जब एक कमरा कतनापुर से हमारे बहनोई हजरत मौलाना हाफिज साहब मरहूम, हमारे उस्ताद मोहतरम, उस्ताद मुरब्बी हजरत मौलाना की जब बारात इस गांव में आई हुई थी, बारात रात में कयाम था उसी मदरसे के कमरे में, और उसी वक्त सैलाब की जद, तेज बारिश की जद की वजह से वो कमरा रात में मुनहदिम हो गया। अल्लाह का करम रहा कि मुझे याद है बचपन से कोई हादसा नहीं हुआ, किसी को कोई चोट नहीं आई, और फिर घरों में, मेहमानों के घरों में मुंतकिल किया गया। उसके बाद ये फिर मदरसा अपना जो एक छत का सहारा 1962 के बाद 1976 में इसको एक छोटी सी छत का सहारा मिला था। हमने भी अपनी बगदादी कायदा, नूरानी कायदा उस जमाने में नहीं था, बगदादी कायदा और इस्लाम कुरान की तालीम मौलवी साजिद साहब मरहूम, मौलवी सिद्दीक साहब दामद बरकातुहुम जो भी मौजूद हैं, और कभी कभी मौलवी समद साहब मरहूम रहमतुल्लाह अलैह, इन बुजुर्गों और मौलवी मोहम्मद आदम साहब से मैंने अपना नादरा शुरू किया था। और उसके बाद जब ये मदरसा उस एक अपनी छत को खोने के बाद दर बदर भटकने लगा, गर्मी के दिनों में दूसरों के पेड़ के साए की तलाश में मदरसा और उसके उस्ताद और उसके बच्चे भटकते रहे। यहाँ तक कि मुझे याद है इस सामने पर एक बाग हुआ करता था, उस बाग के पेड़ों के नीचे भी कभी मैंने तालीम हासिल की है। और उसके बाद गांव के उत्तर साइड में एक बाग हुआ करता था, उस बाग के पेड़ों के नीचे भी कभी कभी मैंने तालीम हासिल की है। और कभी किसी के बंगले के नीचे, जहाँ उस्ताद मोहतरम फरमाते हैं कि आज बच्चे वहां बैठेंगे, आज उन्होंने कहा है हमारे पेड़ के नीचे मत बैठना, बगैर किसी शर्म और हिचकिचाहट के वो मदरसे के वजूद को मौलवी साजिद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने जारी और सारी रखा। 84 में जब ये मदरसा बेसरो सामान हो गया, और उसके बाद इस मदरसे पर जब ये मदरसा लावारिस भी हुआ, बेसरो सामान हुआ, दर बदर भटकने लगा, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत की एक रहमत, अल्लाह ने अपने एक मुखलिस, अपने एक मुहिब और अपने एक आशिक और एक खादिम कुरान करीम को अल्लाह ने इस गांव की तरफ मुतवज्जे किया। 1985 और 86 का दौर था। उस दौर में अकबरी गेट के पास एक कूड़ादान पर मदरसा आलिया इरफानिया की संग बुनियाद होती है, और जिसके बानी और मबानी हजरत कारी मुश्ताक अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह होते हैं, जो उस्तादुल शोरा है, उस्तादुल कुर्रा है, रईसुल कुर्रा है। हजरत कारी मुश्ताक अहमद साहब का सिलसिला हमारे गांव से जुड़ता है चंद मुलाजिमों की वजह से। आप सोच सकते हैं कोई इतना बड़ा कारी, इतना बड़ा उस्ताद, इतने बड़े मदरसे का मालिक, जिसकी पूरी दुनिया में पहुंच हो, जिसके पास तमाम वसाइल हो, वो करसा गांव के रोटी पकाने वाले चंद मुलाजिमों की वजह से इस गांव में आता।
इस गांव में आकर मोहब्बत बांटता, इस गांव में आकर अंधेरे में रहता, इस गांव में आकर रोटी और चटनी खाता। ये सिर्फ अल्लाह का करम, अल्लाह का फضل था कि अल्लाह को अपने इस मुख्तसर और अदना से इदारे को भी बेसरो सामान बगैर सरपरस्त के नहीं रखना था। इसलिए अल्लाह ने हजरत कारी मुश्ताक साहब रहमतुल्लाह अलैह को इस तरफ मुतवज्जे किया, अल्लाह ने उनके दिल में डाला और वो करसा की तरफ मानूस हुए, यहाँ आते कयाम करते। और फिर हमारे भाई मोहम्मद वसीम साहब, भाई और महफूज साहब और अल्ताफ साहब यहाँ बैठे हुए नौजवान साथी हमारे हैं, और इसी तरह मोहम्मद फारूक हैं, अखलाक हैं। ये वो जो नौजवान टीम है, लाल मोहम्मद है जो आज शायद मौजूद नहीं है, लखनऊ में है। इस तरह के चंद ऐसे नौजवान थे जो लखनऊ में मजदूरी यानी रोटी पकाने का काम करते थे या होटलों पे काम करते थे। अल्लाह को काम लेना था तो इन नौजवानों को कारी मुश्ताक साहब की सरपरस्ती मिलती है, और फिर वो कहते हैं कि तुम लोग गांव जाओ, अपने गांव का मदरसा चालू करो और तामीराती काम शुरू करो, मुझसे जो हो सकेगा मैं मदद करूंगा। उसके बाद 1995 और 96 के दरमियान हजरत कारी मुश्ताक साहब रहमतुल्लाह अलैह के ताउन, उनके मशवरे और उनकी हौसला अफजाई के बाद इन नौजवानों की जमात जिसकी सरबराही मोहम्मद वसीम और मोहम्मद महफूज, मोहम्मद फारूक और इस तरह के नौजवान क्या करते थे, इस टीम ने इस गांव में आकर अपने काम को छोड़कर गांव में डेरा डाला। और उसके बाद आप हजरात का ताउन रहा, कारी मुश्ताक साहब का ताउन रहा। फिर आज जो एक कमरे या जो भी पोसीदा ही सही, खस्ता सही, लेकिन जो भी इमारत मौजूद है, जो भी बच्चों के सर पे छत मौजूद है, ये उसी दौर की है जो हजरत कारी मुश्ताक साहब रहमतुल्लाह अलैह की मैयत, उनकी सरपरस्ती और उनके ताउन से हुई है। उसके बाद आज के जलसे की सरपरस्ती भी हमने जानशीन रईसुल्लाह हजरत कारी मुश्ताक अहमद साहब के साहबजादे हाजी और कारी मोहम्मद इम्तियाज साहब के सपुर्द की थी। लेकिन उन्होंने अपने मदरसे में सालाना इम्तिहानात, इंटर कॉलेज के सालाना इम्तिहानात, मदरसे के प्रोग्राम और बहुत सारे मशागिल की वजह से उन्होंने आने से उधर पेश किया, माजरत की। ये और बात है कि हमारे स्टेज पर जितने भी उलमा इकराम तशरीफ फरमा है, इन सब का वक्त कीमती है, इन सब के पास वक्त फारिग नहीं है। लेकिन जो भी इस टेक्निकल दौर में, इस माशरती निज़ाम वाले दौर में और इस फुर्सत वाले, मशगूलियत वाले दौर में आप हजरात ने वक्त निकाला और इस अदना से गांव में, अदना किससे गांव की छोटी सी महफिल को आप हजरात ने बड़ी बनाया। हम इसलिए तमाम मेहमानों के खुसूसन स्टेज पर तशरीफ फरमा उलमाए किराम, रहबरान कौम व मिल्लत के साथ साथ जितने मेहमान यहाँ मजमे में तशरीफ फरमा है, सामईन में तशरीफ फरमा है, वो सब हमारे लिए खास है, सब अहम है। गांव के जितने हजरात तशरीफ फरमा है, कुरान की मोहब्बत में, उलमाए किराम की मोहब्बत में आप हजरात का आना भी हमारे लिए काबिल मुबारकबाद है। हम सब का इस्तकबाल करते हैं और सबके मशकूर और ममनून।